precious time today evening and come all the way over here. Thank you once again and a very Merry Christmas to one and all. It's on a very festive occasion that this album has been releasing. So get ready everybody. The lady star. Everybody put your round applause and welcome her on the stage, Soumya Varma. तालियां बहुत कम सुनाई दे रही है. Come on everybody, put your hands together. Please join us. I request the director of this album, Mr. Jay Parekh, to please join us on the stage. Over here needs no introduction, everybody. Siddharth Nigam is an Indian actor who works in Indian television and films. He is known for his role as young Sahir and Samar in Dhoom 3. He played young Mauryan Prince Ashoka in Colors TV, Ashoka Samrat, Prince Bindusar in Star Plus Chandra Nandini, and Aladdin, I'm sure you cannot forget that, in Sony Subs Aladdin, Naam To Suna Hoga. Can we have a round of applause for him, everyone? For all those who don't know, he is a national level gymnast and has won a gold medal in parallel bar and a silver medal in high bar at 58th National School Games in Pune. Quite impressive, Siddharth. So everybody, well, let me tell you that on Instagram, Siddharth has 9.8 million followers. Definitely hard work has been put into it. And he is a very active social media influencer. Everybody, please welcome Siddharth Nigam right here. And very beautiful over here, we have Soumya Varma, who's debuting with this amazing album. So we wish you all the best, guys, first of all. And to speak a few words about Qureshi Productions. Qureshi Productions is a production house which produces music videos. Alright, sir, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर साहब से पूछना चाहूँगी कि सर आप मुझे बताइए कि इससे पहले आप लोगों ने प्रोड्यूस किया था एल्बम विद जन्नत एंड फैजू एंड नाउ यू हैव प्रोड्यूस्ड दिस एल्बम द न्यू वन द मेरे सनम विद सिद्धार्थ एंड सौम्या. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाउ डिड यू फील? हाउ वाज इट वर्किंग विद देम? बहुत ही अच्छा लगा. स्पेशल है ये सॉन्ग, बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए और दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही प्यारी दिखाई है इसमें भी और सिंपल है एकदम. Absolutely. Yeah. That is so amazing. Thank you so much, sir. Can you pass the mic to Siddharth, please? Everybody clap for our producer Sahab over here. Thank you so much, sir. All right, Siddharth, can you please pass the mic to Soumya? Thank you once again. Siddharth, मैं तो सिर्फ आपसे यही पूछना चाहूँगी. How was your experience working with our Ayub sir? कैसा लगा आपको? वेल डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. बहुत ही अच्छी टीम है और जब मैं शूट कर रहा था ये गाना हमने एक दिन में शूट किया तो डेफिनेटली कितना प्लान शूट हुआ आप खुद समझ सकते हैं कि मेरे कम से कम 5 चेंजेस थे, सौम्या के इतने सारे चेंजेस थे, बट सब कुछ ऐसे फटाफट हुआ. एंड ऑल थैंक्स टू जय भाई ऑल्सो जिन्होंने इसको पूरा डायरेक्ट किया. उनका एक बहुत ही अच्छा विजन, जो विजन था बहुत क्लियर था. एंड वसीम सर, आयूब भाई बहुत ही अच्छे हैं. मतलब मैं शूट पे आई रिमेंबर वसीम सर थे वहाँ पे एंड उन्होंने पूरा शूट देखा एंड बहुत मोटिवेट किया. हमने बैठ के बहुत सारी बातें करी. उन्होंने भी कुछ अपनी ऐसी ऐसी स्टोरीज़ बताई जो वाकई मुझे कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर करी और मोटिवेट भी करी. सो बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल के. और ये गाना भी इतना अच्छा लिखा गया है. अगर आप इनके लिरिक्स को अगर आप ध्यान से सुनेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड द राइट इमोशंस. सो डेफिनेटली इस गाने को करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बिग कंग्रेचुलेशंस टू द टीम ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच. Thank you so much for everyone. Thank you so much, Siddharth. But last but not the least, you also tell me कि location इतना बढ़िया है. कहाँ पे शूट हुआ है ये exactly? चंडीगढ़ इतनी प्यारी जगह है. वहाँ का छोटा छोटा लोकेशन बहुत अच्छा है. अगर उसे अच्छे से दिखाया जाए तो डेफिनेटली जय भाई ने बहुत अच्छे से दिखाया है. हम लोग सरसों के खेत में जाके शूट किए. सरसों का खेत था ना वो. वहाँ पे जाके हमने शूट किया और बाइक सीन्स बहुत अच्छे हुए एंड प्रॉपर एक कोई तो मैंशन टाइप का विला टाइप का था जो कि बुक किया गया था और वहाँ पे बहुत अच्छे से शूट किया गया. सो डेफिनेटली बहुत सारे लोकेशंस थे और बहुत अच्छे से हमने लोकेशंस का यूज़ किया. एंड आप सब ने देखा ही होगा म्यूज़िक वीडियो में कितने अच्छे से दिख रहा है. एंड नो डाउट सौम्या इनका ये पहला प्रोजेक्ट है एंड शी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब नो डाउट एंड या आई एम रियली हैप्पी. वेल सौम्या, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यू आर डेफिनेटली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्यूट इन दी फुल वीडियो. बस कुछ ही देर में जो आपके सामने दिखने वाला है, यू आर लुकिंग रियली अमेजिंग आई मस्ट से.
कितना हार्ड वर्क आपको करना पड़ा? What homework did you do since it was your debut? well, I would say one thing. Sure. सौम्या आई थिंक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, नो डाउट, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है. एंड जब मैंने इनसे पूछा आर यू नर्वस, तो इन्होंने मेरे से क्वेश्चन बैक किया, यू आर नॉट नर्वस राइट, बिकॉज यू आर वर्किंग विद अ फ्रेशर. शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. और सौम्या आप मुझे बताओ कि सिद्धार्थ ने तो डेफिनेटली कह दिया है कि इट वाज लाइक आर यू नर्वस और नॉट, ऐसा आपने कहा था, लेकिन हम सब ये जानना चाहते हैं कि व्हाट वर यू फीलिंग सिंस सिद्धार्थ हैज डेफिनेटली वर्कड सो मच, अब तक जितना भी उन्होंने किया है, ही इज डेफिनेटली अ सीनियर टू यू इन दिस रिस्पेक्ट. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Of course, he's so good. Much. He's very good, very good. सौम्या तो Exactly. स्पीचलेस हो गई है. Actually, I'm blushing right now. I have no words right now. But बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया. शूट पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गया, बस होते गया. फन शूट था काफ़ी. एंड थैंक्स टू अयूब सर जो इन्होंने मुझे अपना इतना लाइक मेरे सनम सिद्धार्थ के साथ मौका दिया. फर्स्ट चांस, माय फर्स्ट डेब्यू. सो इट्स like All the best to you. It was really amazing. Lekin I wish you all the best and we all wish you all the best because it's just the new beginning for you. So we hope to see more and more of you in the future. Thank So you so congratulations much. once Thank again. you so much. Let's go ahead with our function, everybody. Let's go ahead with the evening and let's have the cover reveal, everyone. So can we have the cover reveal, please? Siddharth, here. It's look amazing, yeah. To be a part of this project. What is the first brief that clicked you? आई थिंक द सॉन्ग, बिकॉज सॉन्ग वाकई बहुत अच्छा है. जब मैंने सॉन्ग को पहली बार सुना था तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि ये सॉन्ग बहुत स्लो है, बिकॉज मैंने फ़ोन पे सुना था. एंड देन उसके बाद मैंने स्पीकर पे लगा के गाना सुना. एंड देन जब मैंने इसकी लिरिक्स सुनी तो मुझे इसकी लिरिक्स बहुत अच्छी लगी. एंड आफ्टर दैट जब मुझे एक स्टोरी का ब्रीफ आया कि कैसे हम इसे प्लान कर रहे हैं, शूट करना है एंड ऑल, सो वाकई मुझे एवरीथिंग, मुझे सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे बहुत ही कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फील हुआ कि यार आई थिंक आई शुड नॉट मिस दिस सॉन्ग, बिकॉज ये सॉन्ग अपने में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है. एंड आई वुड से कि ये ऐसा सॉन्ग है जो जिसकी ना एक्सपायरी डेट नहीं है. ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लोग इसे प्यार देते रहेंगे और ये आगे बढ़ता रहेगा. आप खुद कितना रिलेट करते हैं? द मोमेंट द वीडियो स्टार्ट, वो कहती है, आप कहते हैं कि जी दोस्त प्यार, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच रहा हूँ. नहीं, मैं जब भी एक्ट करता हूँ किसी भी म्यूज़िक वीडियो में या फिर मेरा कोई भी कैरेक्टर, तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उस कैरेक्टर की जो उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो पास्ट है वो समझूं और उस हिसाब से एक्ट करूं, ना कि मैं ये समझता हूं कि मैं सिद्धार्थ निगम हूं और मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ होगा इसलिए मैं इस तरह के एक्सप्रेशंस दे रहा हूं. डेफिनेटली नॉट. मैं हमेशा कैरेक्टर के बारे में सोचता हूं कि अगर ये कैरेक्टर, अगर ये इंसान अगर इस फीलिंग्स में जाएगा या उसके साथ ऐसा फील या उसके साथ ऐसा कुछ होगा तो उसे कैसा फील होगा. कभी कभार ऐसा होता है कि आपको बहुत रोने का मन करता है बट कोई होता नहीं है कि आप उसके सामने जाके रो सकें या आपका कोई कब होता हुआ? नहीं है. मेरा कभी नहीं हुआ और जब भी हुआ मेरी माँ हमेशा मेरे साथ थी. बहुत रियल स्पेस में लगता है सब कुछ. मैं वसीम से जानना चाहूँगा, अयूब साहब से जानना चाहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है सब कुछ जितना भी स्क्रीन पे नजर आता है, और जो आज की यंगस्टर है, जो जनरेशन है, वो बहुत रिलेट करेंगे. आप कॉलेजेस को उठा के, और क्या लगता है आपको कि एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए बनाया गया है? हालांकि द सॉन्ग लुक्स रियली रियली गुड, कोई बात नहीं, होता है. मैं फिर से पूछता हूँ आपसे. मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह का गाना आपने बनाया है वो मुझे लगता है कि यंगस्टर को बहुत अपील करेगा. आई होप सिद्धार्थ एंड सौम्या एग्री ऑन दिस व्हाट आई एम सेइंग इन द मोमेंट. सौम्या तुम बताओ, कैन यू रिलेट?
आई एम नॉट रिलेट बट लगता है मुझे कि हाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसे रिलेट करते होंगे, तो हमारी स्टोरी है वो बताएगी, उन्हें एक्सप्लेन करेगी। मतलब ये बताइए कि लड़के को कितना कुछ करना पड़ता है एक लड़की का प्यार जीतने के लिए। सिद्धार्थ, आपके भी अनगिनत दोस्त हैं, हम जानते हैं इंडस्ट्री से। अनगिनत दोस्त। हाँ, ऑफ कोर्स यू हैव बंच ऑफ फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। तो प्यार दोस्ती है? जी हाँ, डेफिनेटली प्यार दोस्ती है और दोस्ती प्यार है। आप ही जितने भी दोस्त होते हैं आप उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी 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 रिस्पेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब भी वो मुसीबत में हो तो आप उनके साथ खड़े हो सकें। अगर वो गम में हैं तो उनके साथ गम बांट सकें, अगर वो खुश हैं तो उनके साथ उनकी खुशियाँ भी बांट सकें। तो आई थिंक दोस्ती इसीलिए ही होती है और इतनी अच्छी ये बॉन्ड बहुत अच्छा है दोस्ती। आपके लुक को लेके क्या ब्रीफ था? बड़े मतलब मुझे लग रहा है आपकी हल्की हल्की सी बियर्ड रखी गई है, जवान हो रहा हूँ और क्या। जवान हो रहे हैं आप, मैच्योर करने की कोशिश करी जा रही है। हाँ। व्हाट इज द ब्रीफ अबाउट लुक को लेकर? कितने लुक टेस्ट हुए कि हाँ यार इस पे जीरो डाउन करना है, ये लुक रहेगा? वेल मोस्टली जो लुक्स होते हैं वो मैं खुद से डिसाइड करता हूँ कि मेरी म्यूज़िक वीडियो में क्या लुक होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा डायरेक्टर के साथ बैठता हूँ बिफोर द शूट कि सर प्लीज़ मुझे बताइए कि कैरेक्टर की डिमांड क्या है और स्टोरी की डिमांड क्या है, स्टार्ट टू एंड क्या इसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि एक ग्राफ होता है हर कैरेक्टर का। तो मैं वो सब चीज़ें पर्सनली जाके डायरेक्टर से पूछता हूँ कि सर मुझे प्लीज़ बताइए सो दैट आई कैन टेल माई सेल्फ कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। और रही बात कैरेक्टर की, तो जब म्यूज़िक वीडियो की ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप एक कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं बट औरों के लिए आप सिद्धार्थ निगम जैसे ही लोग देखते हैं। एंड तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि हर म्यूज़िक वीडियो में मेरा लुक चेंज लगे, डिफरेंट लगे, ताकि हर म्यूज़िक वीडियो में जब भी आप लोग देखें तो आपको कुछ अलग देखने को मिले, बीट एनीथिंग। सौम्या, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत कम बोला आपसे, इतनी कोशिश करी एंकर ने आपसे बुलवाने की, लेकिन आपने 2 शब्दों में निपटा दिया उन्हें। पूछिए। कैसा एक्सपीरियंस है और कितना सही डेब्यू मानती हैं? इफ इट इज योर डेब्यू, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। सिद्धार्थ, इतना अच्छा गाना और इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस और इतनी प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत हाई लगी मेरे को जब मैं देख रहा था गाना। द प्रोडक्शन वैल्यू इज वेरी वेरी हाई। टेल अस हाउ इज योर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। ऑफ कोर्स सिद्धार्थ के साथ मुझे मौका मिला काम करने को जस्ट बिकॉज ऑफ अयूब सर। और सॉन्ग मैंने अप्रोच किया, बस बातें की, सर को वीडियोस अपने सेंड किए और सर ने फाइनल किया। अब लक, भगवान ब्लेसिंग्स थी, लक हो गया बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी बहुत मज़ा आया, आपने देखा ही, बस सॉन्ग को बहुत सारा प्यार दो, मुझे प्यार दो, आगे बढ़ना है और क्या। That's it. Thank you. Okay, so my question is like when you got to know about. Not at all. What do you think? I'm nervous. Yeah. Okay, so मेरा next सवाल सिद्धार्थ सर से, जो पिक्चर जो पीछे फ्रेम में दिख रही है, the way she is looking at you is looking very good. आपको क्या कहना चाहोगे वो पिक्चर को देखिए? मैंने ऐसे बोला कि मुझे ऐसा देखो जैसे तुमने कभी अपने बॉयफ्रेंड को देखा होगा, तो थोड़ा अच्छा इमोशन आएगा, पोस्टर में अच्छा लगेगा, तब आई थिंक इसने ऐसे देखा है मुझे। अयूब सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये गाने को लेके ही आपने ये दो कपल को क्यों चूज किया? एक्चुअली जब ये गाना लिखा जा रहा था, गाने के आपको अभी पता भी चल गया है कि एज अ प्रोड्यूसर हमारे वसीम साहब है, आप लोग उन्हें अब एज अ लिरिक्स राइटर भी जान पाएंगे। तो जब वो सॉन्ग लिखा गया, सिद्धार्थ भाई को भेजा गया, तो जो उन्होंने बताया फर्स्ट टाइम के मोबाइल पे अच्छा नहीं लगा, स्पीकर पे अच्छा लगा। तो और सौम्या की जब वीडियोस देखी, क्या कहते हैं, अट्रैक्शंस वगैरह बढ़ा के भाई इन दोनों को लेते हैं और सॉन्ग कंप्लीट करते हैं। और अपने डायरेक्टर साहब तो आए नहीं, डायरेक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा सॉन्ग बनाए हैं, सिंपल, एकदम सिंप्लिसिटी दिखाई है बिल्कुल, इसमें कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं है, सिंपल लड़के का लुक दिया है, सिंपल लड़की का लुक दिया है और एक ही दिन में सारा शूट कंप्लीट किया है। ओके, सो मैं एक स्टोरी बताने के लिए, हम फिल्म में 2 से 3 घंटे लग जाती है एक स्टोरी बताने के लिए, पर एक गाने में 3 मिनट लगता है। तो सिद्धार्थ सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एज एन एक्टर चैलेंजिंग रहता है या फिर मतलब हो जाता है ये? एज एन एक्टर इंटरेस्टिंग रहता है और कुछ नया सीखने को मिलता है। आई थिंक ये क्वेश्चन अगर आप किसी डायरेक्टर से पूछेंगे तो वो सही जवाब देंगे, बिकॉज डेफिनेटली डायरेक्टर के लिए ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि इतने छोटे छोटे इमोशंस को
सही तरीके से दिखाना वो भी 3 से 4 मिनट में, तो ये आई थिंक हैट्स ऑफ डायरेक्टर्स जो इस बारे में सोचते हैं। तो ये काम उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, ना कि एक्टर्स के लिए। हमें जो बोला जाता है हम वो परफॉर्म करते हैं। सो डेफिनेटली जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनके लिए हमें तालियां बजानी चाहिए कि वो इतने अच्छे इमोशंस को 2 से 3 मिनट में दिखा देते हैं। ये सो कुरैशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इतने यंगस्टर में एंड यू आर प्रोड्यूसिंग दिस सॉन्ग, सो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो आज के प्रोग्राम को लेके? और ज़्यादा, हद से ज़्यादा एक्साइटेड। लाइक सॉन्ग जो है बार बार मन में घूमता रहता है। अगर आप 2 बार सॉन्ग सुनोगे उसके बाद बार बार मन में मेरे सनम बार बार वो घूमता रहता है। ओके, सो अख्तर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अख्तर जी मैं आपसे जानना चाहूँगा ये दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? ये एकदम बिल्कुल अलग है, हटके है, नयापन है अपना एक, और जो गाने के बिल्कुल अलग है, हटके है, नयापन है अपना एक, और जो गाने के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि गाना बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सादगी है। वर्ड भी बहुत सिंपल है जो लोगों को समझने में आसानी होती है। आज गाना वही चलती है जो लोगों को समझ में आए, आम पब्लिक को समझ में आए, वही गाना हिट होती है बस। और जोड़ी बहुत ही अच्छी जोड़ी है और मैं दुआ करता हूँ कि गाना हिट हो। आप लोग की दुआ चाहिए हमें। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर सॉन्ग। आपके लिहाज से मुझे लगता है बहुत मैच्योर सॉन्ग है, और आपके लिए ये कितना मुश्किल या आसान रहा यार? हाँ, मुश्किल देखिए ऐसा है कि मुश्किल तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आती ही है जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं। बट मैं बहुत ही टेंस था इस चीज़ को लेके कि मैं अपने बालों का लुक क्या दूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि बाल अच्छे रहते हैं ना तो आप बहुत अच्छे दिखते हैं। तो मेरे लिए मुश्किल यही था कि अपने बालों का लुक क्या दूँ। अदरवाइज़ जो हमारे डायरेक्टर थे उनसे मैंने जब बात करी तो मुझे बहुत अच्छे लगे, उनका विजन बहुत अच्छा से बहुत क्लियर था। एंड उन्होंने बोला कि टेंशन ज़्यादा मत लो, बस जस्ट फील द सॉन्ग एंड एक्ट। सो मैं बस सॉन्ग को फील कर रहा था और एक्ट कर रहा था। हाउ आई डिफाइन लव हाउ आई डिफाइन लव आई डोंट नो। ये तो मुझे भी जानना है। How I define, like in one word, or you need a sentence? See, if it comes to defining love, then love is all about respect, and that's it. Respect and loyalty, definitely. When you respect, you understand each and everything. Loyalty हो, understanding हो, या फिर कुछ भी हो. So you have to respect the love. जो आपसे सच्चा प्यार करें, उन्हें सच्चा प्यार करिए. उनके साथ कभी धोखाधड़ी मत करिए. So I think love is something. It's a respect. It's a respect love. सुनिया, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में? तो मुझे लगता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये बहुत अच्छा गाना है और लोग बहुत पसंद भी करेंगे। आप मानती हैं कि आपकी जो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, आधी जंग जीती जा चुकी है? ऑफ कोर्स आई एग्री विथ यू। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और बस आप लोग प्यार दो। और ये सॉन्ग कोई स्ट्रगल नहीं था, बस हाँ मुझे डायलॉग्स में थोड़े प्रॉब्लम्स हुए और जो इसने बोला कि डायलॉग्स हो जाए उसके बाद तो आई कैन डू इट। हाँ, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़े प्रॉब्लम्स हुए बट बाकी सब नॉर्मल था। मेरे को फिर फील नहीं हुआ, फिर होते चला गया एक दिन में। बहुत ही स्मूथली हो गया। हाँ, स्मूथली हो क्या गया। सीखने को मिला सिद्धार्थ से? एक्टिंग सीखने को मिली इनसे। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं ऑफ कोर्स, तो मुझे इनसे थोड़ी इमोशन सीखने को मिली और ये मेरे को बता भी रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो, तो ही इज़ वेरी नाइस। सिद्धार्थ, एक स्टूडेंट मिल गया आपको, क्या फील था आपका ऑन फ्लोर? यू नो, अगर एज अ आर्टिस्ट एज इंडिविजुअल भी एक दूसरे की हेल्प करना अच्छी बात है। सी, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनके साथ आपको एकजुट मिलके काम होता है। टीम, किसी भी प्रोजेक्ट में एक टीम काम करती है। तो जब मैं सौम्या से मिला, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि प्लीज़ डोंट बी नर्वस। तो जब इन्होंने मेरे से बोला कि यू आर नॉट नर्वस राइट बिकॉज यू आर वर्किंग विद अ फ्रेशर, मैं समझ गया कि ये कॉन्फिडेंट है। सो ज़्यादा इन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड नो डाउट शी इज़ वेरी गुड। इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। ये बाकायदा डायरेक्टर को सुन रही थी, वो जो बोल रहे थे ये वो चीज़ें कर रही थी। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लिसन एंड लर्न। तो ये सीख रही थी, सुन रही थी और सीखते सीखते सब कुछ इन्होंने अच्छे से कर दिया। मेरे सनम जब मैं बात करता हूँ तो आपने कहाँ ये महसूस किया है ना वाइल शूटिंग दिस कि यार ऐसा निजी ज़िंदगी में मैंने देखा है? मेरे सनम नहीं, इट्स नॉट अबाउट
नॉट अबाउट इंडिविजुअली यू Yeah. क्या ऐसा होता है Definitely. कॉलेज में भी होता है डेफिनेटली होता है। लोगों को पहला पहला प्यार भी होता है, और लोगों जब हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, तो हमें ऐसे कोई लड़की दिखती है जो हमें अच्छी लगती है, या फिर किसी को कोई लड़का दिखता है, किसी लड़की को कोई लड़का दिखता है तो उन्हें भी अच्छा लगता है। सो ऐसा जो हमने दिखाया, ये ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं होता, या फिर कुछ हमने दुनिया से हटके हाँ दुनिया से हटे कुछ दिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सटल एंड एकदम रियलिस्टिक है। ऐसा होता है, लोग ट्राई करते हैं कि वो अपने प्यार को प्रूव कर पाएँ जिनसे वो प्यार करते हैं, और वो ये भी कोशिश करते हैं, ये भी प्रे करते हैं कि वो जिनसे प्यार करते हैं वो उनकी ज़िंदगी में रहें और उनसे भी वो प्यार करें। आपकी कॉलेज लाइफ कैसी है मेरी कॉलेज लाइफ अच्छी रही, बट मैं ये कहूँगा वेरी ऑनेस्टली कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स देने ही जाता था ज़्यादातर। एंड मेरी स्कूल लाइफ थी अच्छी खासी, क्योंकि मैंने 12th तक प्रॉपर स्कूलिंग के साथ कुछ किया। कॉलेज लाइफ में था कि शूट भी करता रहता था, और जब एग्ज़ाम्स होते तब मैं कॉलेज जाता था, तो कॉलेज लाइफ मैंने उतनी नहीं जी है, बट स्कूल लाइफ थी। और स्कूल लाइफ में भी मैं हॉस्टल में रहता था लड़कों के बीच में तो हमारे यहाँ अगर हम लड़कियों को देख लेते तो डांट पड़ती थी, इसलिए हम नहीं देखते थे बॉलीवुड का हिस्सा है आप, इंडस्ट्री का हिस्सा है, आपका कोई क्रश रहा है इंडस्ट्री में, कोई एक्ट्रेस की यार ये मुझे बड़ी अच्छी लगती थी अपने टाइम जब स्कूल जाते थे? अपने टाइम पे जब वो हम कटरीना कैफ, नो डाउट, लाइक शी इज़ गॉर्जियस, और हम हॉस्टल में जब भी बात करते थे ऐसे कटरीना कैफ, तो मैं ऐसे वहाँ कटरीना कैफ तो हम सब की वो क्रश। तो विक्की कौशल की शादी के लिए दुख होता है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, एंड आई एम रियली हैप्पी, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खुश हूँ मैं। ऑडियंस को आप दोनों क्या कहना चाहेंगे, क्यों वो मेरे सनम का हिस्सा बने? मैं यही कहना चाहूँगा कि गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही डीप मीनिंग्स हैं इसमें। अगर आप इसकी बोली सुनेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द लिरिक्स, यू विल अंडरस्टैंड कि कितने अच्छे से लिखा गया है और कितने प्यार से लिखा गया है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इसकी लिरिक्स बहुत अच्छी है, इसको बहुत अच्छे से यासिर ने गाया है। सो डेफिनेटली वर्थ लिसनिंग सॉन्ग है एंड वर्थ वॉचिंग सॉन्ग भी है, बिकॉज हम लोग हैं उसमें एंड बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट किया गया है। सो आई वुड लव कि अगर आप लोग गाने को देखें और शेयर करें और उसे ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये गाने में भी बहुत धमाकेदार केमिस्ट्री देखने मिली, उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? मैं बस कोशिश करता हूँ कि मैं अपने हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया लेके आऊँ। बस मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ, जिससे कि जो मेरी ऑडियंस हैं, जो लोग मुझे देखते हैं वो खुश हैं। वेल आई वुड से कि जो टीम थी बहुत अच्छी थी, और इस पूरे फिल्म के जो डायरेक्टर थे जय, उन्होंने बहुत अच्छे से शॉट्स लगाए। आई थिंक जो डायरेक्टर होते हैं वो कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं, और उनका जो एक विजन होता है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक फ्रॉम द बिगनिंग बहुत क्लियर था और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही स्मूथ वे में हमने शूट किया, और ये शूट हमने एक दिन में कंप्लीट किया। वो भी लोकेशन इतनी सारी चेंजेस थी, आपने देखा होगा वो सरसों का खेत था, वहाँ पे हमने शूट किया, बाइक शॉट्स लिए, सारे अलग अलग लोकेशन पे हमने अलग अलग ड्रेस के साथ अलग अलग कॉस्ट्यूम थी हमारी, तो उसमें हमने ये पूरा म्यूज़िक वीडियो शूट किया, और वो भी एक दिन में। तो आप सोच सकते हैं कि टीम कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी प्लानिंग थी। बहुत प्यारा। अरे लिरिक्स तो खुद आई थिंक वसीम जी ने लिखी है, एंड बहुत ही अच्छी से लिखी है, हर एक लाइन्स का मतलब है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जो ड्रॉप आराम से या सो जो ड्रॉप है मेरे सनम मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत प्यारी लिरिक्स है। अगर आप लोग गाने को सुनेंगे, गाने के जो लिरिक्स है समझेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग अपने इमोशंस को कनेक्ट कर पाएंगे। वेल जो मेरी को स्टार है उसमें सौम्या उनका नाम है, एंड उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अपना बेस्ट दिया है। ये आई थिंक उनके लिए एक नया प्रोजेक्ट था, सब कुछ उनके लिए नया था, बट वो बिल्कुल नर्वस नहीं थी और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, जिससे कि सब लोग को बहुत अच्छा लगा, एंड ऑन स्क्रीन भी सबको बहुत पसंद आया। वेल आई ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट, सो लेट्स सी कि 2022 में क्या क्या बेस्ट होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।